would like just to give you a few instructions. So this is the practically the first session about the GCCP program after the we have like selected the volunteers or the participants for this program. Okay, so this will be approximately 1 hour session, and you'll come to know that whatever is being told in the session. If in case you have any queries, please don't interrupt in between. Just keep it like keep your queries for the end of the session, or just drop it in the chat section. Okay, avoid opening your mic in between the session. Also, yeah, all your queries will be entertained in the end. And yeah, stay calm and stay connected till the end, because like you're going to learn a lot in this session. Okay, so give me a minute. So, good evening, everyone. This session is being conducted by GDSC SRCSW, and I am your cloud facilitator, Khushi Pawar, and I'm going to be helping you throughout this 1 month. We're going to learn the fundamentals of cloud and get enrolled into engineer learning path. So, those who attended the last session, they must be knowing ki what is GCCP and why there were only limited seats, and like what is being told in this program. I guess the people who attended the last session, please just show your attendance, drop a cloud in the chat section, please. जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किया था, the introductory session to GCCP, just drop a cloud in the comment section. Yes, we have Diksha, Jyotsna, Avinash. Okay. What about others? Guys, be quick, stay enthusiastic, because it's all about cloud. You're going to learn a lot, and great. Those who are new, and for your convenience, I'm going to just tell you in short that what is GCCP and what are you going to learn throughout this 1 month campaign. All right, so I hope few of you must have seen the PPT that was shared earlier. Those who didn't, don't worry, I'm going to tell you each and everything. In case you have any sort of doubt, just drop in the chat section. We will try to resolve it as soon as we see it. Okay, so Cloud Carrier Practitioners Campaign, as the name suggests, it is a campaign organized by Google. ठीक है, and इसमें आपको एक opportunity मिल रही है where you can learn the fundamentals of cloud. Okay, and learn it in such a way that you can learn some skills and go further about developing your own career in cloud. And that's what the name suggests. So, yeah, first of all, congratulations to each and everyone who successfully registered for GCCP. You will be getting your confirmation mail tomorrow, and like I have received the list and मैंने वो sheets में update किया था, in case you have checked the description. All right, two or more entries are not updated, but others are updated. So first of all, congratulations for being shortlisted for this campaign. ठीक है, so after you have been selected, tomorrow your journey begins. ठीक है, and it begins from 14th November till 14th December. ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि यू आर गोइंग टू लर्न गूगल क्लाउड विद क्लाउड इंजीनियरिंग लर्निंग पाथवे. Okay, and second step is that you are going to build the projects using Google Cloud. And this part is very interesting because अभी तक जितने भी cloud campaigns हुए हैं, as far as I remember, किसी भी cloud campaign में project building का part नहीं था. So this is the best thing about GCCP, is that you will get to build the projects using Google Cloud, apart from all those courses and labs which will be available to you. So tomorrow is 14th, and कल आपको just see the image on the right side. You will get an email just like this. Okay, so जिस email से आपने register किया है, उसी email पे just stay on check. आपको you will get an email like this. इसमें आपको मिलेगा एक credit pass. All right.
किसी ने अभी तक, जस्ट अ क्वेश्चन, किसी ने अभी तक जो पाथवे थी विच हैज बीन गिवन हियर, इसे एक्सेस करने की कोशिश की, लाइक व्हाट ऑल इज देयर, हैज एनीवन ट्राइड टू एक्सप्लोर दैट पाथवे? Just drop in comments, just say yes. Okay, we have Karishma and Ananya. Anyone else who has tried to explore that architecture engineer pathway? Okay, Vanshika. So you must have noticed कि उसमें आपको labs access करने के लिए you will be needing the credits because those labs are not for free. ठीक है, Google Cloud platform, it is, although it is cheap and affordable, but it is not for free. But in this campaign you will be getting that for free, like you will be getting a free credit जिसके लिए आप मंथ्स तक उसको यूज करके आप गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अपने वर्क्स कर सकते हो। ठीक है, तो कल जो आपको tomorrow you will be getting this email जहाँ पे आपको ये सब कोड अवेलेबल हो जाएगा। Okay, so tomorrow just read the email carefully. Each and every instruction has been given in that email. You will be also given a video जिससे आप उस access code को redeem कर सकते हो। ठीक है, the access code is unique and you do not have to share it with anyone else, वरना आपका जो कोड होगा वो किसी और के पास चले जाएगा, your loss will be yours only। ठीक है, the video has been given, will be given in the mail itself. The exact guidelines will also be given. Okay, so as soon as you get your email, open your laptop or a mobile, like whatever is comfortable for you, just redeem that access code, and that is very much important to help you get going with this track. All right, is this thing clear? Just type yes in the chat section, everyone, so that I can get an acknowledgement. Great. All right, let's move further. So this is just a small screenshot of the courses which are there in your engineer learning pathway. Okay, you have an hands-on lab about the Google Cloud Tour and so and so. Like you have courses also. You have the Quest or the Skill Badges lab also. Now, how are we planning to do this? See, आपका जो कोर्स है ना, ये बाकी क्लाउड कैंपेन्स के थ्रू इसका जो कंपेयर किया जाए तो उसका सिलेबस काफी शॉर्ट है। लेट मी जस्ट ओपन इट एंड शो इट टू यू। So basically, this is your syllabus. You are just having 8 courses and 4 quests. Okay, quest is like ये practical based होती है, जैसे कि आपको quest के अंदर let's just open it. So in this quest, you will be having few labs. You can see like creating a virtual machine, Kubernetes. You have HTTP load balancers. You are having these labs. लैब्स में आपको लाइक फॉलो अलाउंग लैब्स होंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, कोड दिया होगा, आपको उनके स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं इन दीज लैब इटसेल्फ। ठीक है, सो लैब्स वर्क लाइक दिस, बट इन द केस ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू हैव सम पीडीएफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, यू आर गोइंग टू हैव सम वीडियो ट्यूटोरियल्स टू अंडरस्टैंड, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड about the course, like you can see here। ठीक है, तो it is important for you to complete the course also and to complete those quest labs also। The course may appear a little bit boring, but course के अंदर भी multiple चीजें, like you can see you have 4 videos, 1 document and 2 quizzes। It is mandatory to pass the quiz। All right, it's not too difficult basically। Each and every week I will give you a short summary, so that in case you are like a little bit lethargic in completing those documents or reading those slides, so you will get to know each and everything from the summary that I provide you in order to make your work easier। Okay, so now I hope each and every one of you must have explored this. If not, just do one thing, click on sign in, use the email that you used to sign in through this cloud, the skill boost one। ठीक है, साइन इन करके रखो, एनरोल करो उस चीज पे, लाइक आई हैव दिस कोर्स। ठीक है, so once you sign in, you have to enroll individually into all these courses and labs, and you have to get started। Okay, it will be better if you complete one course at a time, because अगर आप multiple courses में jump करोगे out of curiosity, the loss will be yours, because cloud fundamentals are interesting to understand, but sometimes they may get a little bit overwhelming। ठीक है, and many of you are beginners, I know it। So in order to make things easier for you also, just complete one course which has been prescribed to you।
in this line. Okay, so because each and every week I'll be giving you some target कि आपको कितनी courses complete करने हैं and कितने labs complete करने हैं. So your task for this week is going to be you have to complete this lab, getting started, that's create and manage cloud resources, and you have to complete these courses as well. See, to run quick lab is very easy. You can complete in 20 minutes. These two may take time, but 1 week is sufficient for these primary tasks. Now, those who didn't attend it last session, just like stay active and get on the chat. First, I would like to ask you that what is Google Cloud for you? Try to describe in 2 or 3 words or a sentence, like whatever is comfortable for you. What is Google Cloud? Guys, come to the chat section quickly. What is Google Cloud? Or simply what is cloud for you? जो आपकी understanding है, guys, be quick. Okay, storage related. Online database. Quick, quick, quick. Great. Your keywords are kind of accurate, guys. Virtual servers. Great. Next. Space provided by Google to save data. Rented system. Great. Okay. Services, data storage, virtual storage, and what else? Guys, be quick. Like, jitne ho, you have 50 participants. At least 40 responses hone chahiye chat mein. You guys are like doing great. Okay, global network. Pay for what you use. Go as you pay. Great one. Cloud means data is stored on virtual server. Very good. Storage provider. Great. IT infrastructure, retail servers, and what else? Great. So now, dropping that, okay, conquest. The definition is like cloud is a kind of virtual server, you can say, or a kind of server which is connected over internet. SaaS, we will be coming to it, Uday. We will cover it in this session. We are not trying to make everything complicated, but a great term. Okay, great summer. Now, uh, so on your screen, guys, the cloud, it refers to the server which is connected to the internet and it provides services. ठीक है, तो क्लाउड को हम बेसिकली एक सर्वर मान सकते हो, चाहे आप उसे वर्चुअल लेके चलो या फिर किसी भी तरह का सर्वर लेके चलो, बेसिकली तो वर्चुअल लेके चलते हैं. ठीक है, तो इट इज अ काइंड ऑफ सर्वर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ठीक है, एंड दो सर्विसेज कुड बी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. इट कुड बी about database, it could be storage management, it could be virtual machines that someone has mentioned. ठीक है, it could be anything. Okay, so cloud is a kind of server hosted over internet which provides various kind of services. And by Google platform, we mean to provide a software system that deploys the functions and applications as per needed and on automated basis. All right. अब आते हैं cloud hosting के evolution पे. Because basics of Google Cloud, they were covered in the last session. So this week in this session we are going to cover up like जो भी cloud के बारे में आपको जानना important है. तो coming to the evolution of cloud hosting, सबसे पहले like before cloud ever existed, you have a dedicated server. That is कि आपकी एक physical machine होगी, आप उसका OS setup करोगे, आप उसका जो physical infrastructure होता है, hardware components आप उसे setup करोगे, ठीक है? And that particular machine is dedicated to a single business. इसको आप ले सकते हो like if you are an individual who is like starting his own startup, you're having a laptop and that is going to be your only dedicated server. Yes or no? ठीक है, तो देखो उसके perks क्या थे? It was kind of expensive. It had high maintenance because hardware को भी आप ही देख रहे थे. In case अगर मेरी RAM खराब हो जाए, RAM मतलब like damage हो जाती है या फिर any of the physical peripherals get damaged, तो इसमें high maintenance मेरी side से जाएगा. But it had high security. बिकॉज एक सर्वर या फिर एक सिस्टम, एक मशीन एक ही पर्सन के साथ शेयर हो रही थी. ओके, नाउ फ्यू इयर्स लेटर व्हाट दे इंट्रोड्यूस, दे वर लाइक कि हमारे पास एक सिस्टम तो है, लेकिन इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि हम उस एक सिस्टम में मल्टीपल टास्क कर सकें. ओके तो इसमें उन्होंने क्या किया, इन द केस ऑफ वर्चुअल प्राइवेट सर्वर उन्होंने एक सिस्टम लिया बट उसको उसने डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया यूजिंग दी वर्चुअल मशीन्स. तो यहाँ पे आपका ना वर्चुअल मशीन्स का कॉन्सेप्ट आता है. I hope many of you have heard about it. Okay, so what actually happened कि आपका जो एक सिस्टम था, एक डेडिकेटेड सर्वर था, उसको मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में सेपरेट कर दिया गया ताकि क्या किया जा सके कि लाइक मल्टीपल टास्क उस पर रन हो सके फ्रॉम द सेम बिजनेस ओनली.
ओके, देन केम द शेयर्ड होस्टिंग. अब शेयर्ड होस्टिंग में ऐसा हुआ कि लाइक पहले तो हम एक ही बिजनेस पे ऑपरेट कर रहे थे, बट इट हैपेंड कि लाइक ओवर टाइम टू टाइम पीरियड मल्टीपल बिजनेस रिक्वायर्ड द सर्विसेज. दे नीडेड ईदर लाइक चैटिंग सर्विसेज और द कस्टमर केयर सर्विसेज फॉर देयर ओन ब्रांड. ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या किया गया, शेयर्ड होस्टिंग का टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया. अब इसमें क्या होता है, इसमें यू हैड अ सिंगल फिजिकल मशीन and it was shared by hundreds of businesses. But this thing, shared hosting had a kind of disadvantage. Disadvantage ये था कि like shared hosting के case में most of the tenants either they were underutilizing the resources or they were overutilizing the resources. इसको example से समझते हैं. ये physical machine suppose आपके 500 GB का storage provide करती है, ठीक है, and it is like divided shared with hundreds of businesses. Okay, it is shared with hundreds of businesses and it has a storage of 500 GB. सो मैथमेटिक के हिसाब से कैलकुलेट करके चलो कि एक बिजनेस को कितना जीबी स्टोरेज मिल रहा होगा उसकी वेबसाइट होस्ट करने के लिए. यस, कम टू द चैट गाइस. In the shared hosting, a particular machine is providing the storage of 500 GB for its user and you have 100 businesses connected to it. So how much storage is allotted to only one business? I guess 5 GB. ओके, सो इसमें देखो क्या होता है. सपोज मेरी वेबसाइट है कुछ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की एंड आई हैव होस्टेड ओवर दिस शेयर्ड होस्टिंग वाली मशीन. ठीक है, बट सेकेंड वाले ऑर्गेनाइजेशन का कुछ खास नहीं है, इट्स जस्ट द सिंपल पेन स्कूल की वेबसाइट. तो ऑब्वियसली जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसको ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी बिकॉज आई हैव टू स्टोर माई बुक्स ओवर दी दिस मशीन. यस और नो? हम मुझे स्टूडेंट का जो डेटा है, मतलब जो भी लाइब्रेरी में आ रहा है, जो रेंट कर रहा है या फिर जो बोरो कर रहा है, उस चीज को लेके डेटा मेंटेन करना पड़ेगा. तो इट वाज द थिंकिंग वहां पे मेरी साइड से तो रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइज हो जाएंगे. मैं 5 GB का 10 GB भी यूज कर सकती हूँ और वहां पे मुझे ट्रैक करने वाली भी कोई चीज नहीं होती. ओके, बट जो स्कूल वाली वेबसाइट है, इट मे हैपन इट वुड हैव ओनली लिमिटेड टू 1 GB और 2 GB. Okay, so this was the thing with shared hosting. So in order to trigger out in order to overcome the disadvantages of these hosting models, it came with cloud hosting. ठीक है, तो what is in cloud? You have multiple physical machines. ठीक है, you have multiple physical machines and they act like one system. Take it as a data center. आप कोई डेटा सेंटर की फोटो इमेजिन करो, उसमें क्या होता है, बहुत सारी मशीन्स होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ वायरिंग, ग्लासेस के बने होते हैं सारे जो डेटा सेंटर्स होते हैं एंड इट्स लाइक दैट. ठीक है, तो टेक इट एज मल्टीपल फिजिकल मशीन्स आर देयर. ठीक है, एंड दोज मशीन रेफर टू अ क्लाउड. ठीक है, इट इज बेसिकली अ सर्विस सेंटर यू कैन से विच रेफर टू अ क्लाउड. एंड क्या करता है, उसके अंदर देर आर वेरियस प्रोटोकॉल्स और द मैकेनिज्म विच टेंड टू ऑफर द क्लाउड सर्विसेज. अब इसका फायदा क्या था? क्लाउड होस्टिंग इज फ्लेक्सिबल. First thing, flexible. Now, will anyone like to explain me or like tell me what is meaning of flexibility in terms of cloud hosting or Google Cloud? Anyone? What is the meaning of flexibility in terms of Google Cloud? Okay, nice guesses. Next, what else it could be? Storage is flexible. Okay. And what else? सी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स पे ये आता है कि जो क्लाउड होस्टिंग होती है ना, उसमें आपको एक सर्वर प्रोवाइडेड होता है, नॉट अ फिजिकल वन बट अ वर्चुअल वन, जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को होस्ट करते हो. ठीक है, यस, स्नेहा इज राइट, द सर्विसेज आर फ्लेक्सिबल एंड दे कैन बी ऑल्टर्ड टू एनी कंपनीज बिजनेस नीड्स. इट कुड बी द सर्विसेज एंड इट कुड बी योर सर्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो. ठीक है, सो फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि अगर आप क्लाउड होस्टिंग यूज करते हो या फिर यू आर ऑन द गूगल क्लाउड, तो आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करोगे थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशन as well as the server that you're using, you can modify, you can add or delete or remove the features as per your requirements. Okay, scalable का मतलब ये होता है कि like first my organization was like a limited, तो हमारा डेटा 1 GB के अराउंड था, but like as years passed my organization has expanded globally and we need more data storage structures. तो वो क्या स्केलेबल है, वो 1 GB से 10 GB पे एक्सपैंड हुआ, 10 GB से 1 TB पे एक्सपैंड हो गया. ओके, सिक्योर. The cloud systems
दे आर वेरी सिक्योर, ठीक है। गूगल क्लाउड की साइड से बहुत सारे सिक्योरिटी को लेके लाइक बहुत सारे मैकेनिज्म्स एंड बहुत सारी पॉलिसीज हैं, सो दे मेक क्लाउड होस्टिंग सुपर सिक्योर, कॉस्ट इफेक्टिव। यहाँ पे समवन हैज मेंशन पे एज यू गो, सो या cloud is cost effective because you only pay for the services that you are using. Suppose अगर मैं एक वर्चुअल मशीन यूज कर रही हूँ विद Debian OS, ठीक है, तो उसकी रेटिंग, उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कुछ और होगा, ठीक है। इफ आई एम यूजिंग लाइक विंडोज 11, तो उस वर्चुअल मशीन का प्राइस कुछ और होगा, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू ओनली पे फॉर द सर्विसेज which I'm using. Then we have high configurability, and this is your homework to find out that what is high configurability. Next, benefits of cloud computing हमने discuss कर लिए. All of us just go through it and read it, and when you are done, just drop a thumbs up. Benefits of cloud computing. Does anyone has any question here about the points given? Just drop a thumbs up if you're done. सी स्केलेबिलिटी मीन्स कि आपके जो क्लाउड होते हैं, ठीक है, इट एक्चुअली मीन्स हम स्टोरेज के एग्जांपल में लेते हैं व्हाट इज स्केलेबिलिटी। सपोज आई हैड एन ऑर्गेनाइजेशन जिसे लिमिटेड डेटा पे वर्क करना था, ठीक है, इट ओनली लिमिटेड एंड लिमिटेड डेटा ऑफ 1 GB, बट लाइक 10 decades 10 years have passed, like some कुछ एक पर्टिकुलर टाइम बाद आई नीड मोर डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर्स इन द क्लाउड, ताकि मैं डेटा को स्टोर कर सकूं, दैट इज द यूजर्स डेटा, ठीक है। तो व्हाट कैन हैपन कि जहां पे मैं 1 GB ऑफ डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर के लिए, क्लाउड स्टोरेज के लिए पे कर रही थी, मैं उसे एक्सपैंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो इट इज स्केलेबल। सेम हैपेंस विद द डेटाबेसेस आल्सो। अगर मेरा डेटा छोटा है तो उसके लिए डेटाबेस अलग होते हैं। चलो एक एग्जांपल मैं इसका अच्छे से बताती हूँ। डू यू गाइस नो व्हाट इज रॉ डेटा एंड व्हाट इज रिलेशनल डेटा? लाइक रॉ डेटा एंड रिलेशनल डेटा, टेक इट एज एक जगह मेरा टैबुलर डेटा है और दूसरी जगह मेरे पास डेटा है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, पिक्चर्स एंड ऑडियोज। आई एम कमिंग टू इट संस्कार। गाइस आर यू लिसनिंग? लाइक आई एम सेइंग दैट एक जगह पे मेरे पास है डेटा इन द टैबुलर फॉर्म, ठीक है। रॉ डेटा इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, लाइक यू आर करेक्ट। ओके, सो सपोज पहले मैं कर रही थी रिलेशनल डेटा पे वर्क, दैट इज रो एंड कॉलम। जैसे कि आप कह सकते हो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, जहाँ पे उनकी मार्किंग की जाती है उसका सिस्टम हो गया, यस और नो। बट कुछ टाइम बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी नीड पड़ी कि मुझे ऐसे स्ट्रक्चर्स यूज करने हैं, ऐसे डेटाबेसेस यूज करने हैं जो रॉ डेटा को होल्ड कर सके। कैन इट हैपन? वो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जो मेरे टैबुलर डेटा के साथ साथ मेरी इमेजेस एंड जो भी रॉ फाइल्स होती है, रॉ डेटा होता है, उसको होल्ड कर सके। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले मेरी नीड पर्टिकुलर रिलेशनल डेटा पे थी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है प्रवृत्ति, आई होप यू आर गेटिंग इट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिचुएशन हैज चेंज्ड, द डेटा दैट आई हैव टू स्टोर इन द डेटाबेसेस हैज एक्सपैंडेड, इट हैज चेंज्ड। तो क्या होगा, मुझे अपने सर्वर्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट कम्स विद स्केलेबिलिटी, ठीक है, स्केलेबिलिटी इन डेटाबेसेस और यू कैन से डेटा वेयरहाउसेस। आई होप you have understood. प्रवृत्ति जस्ट ड्रॉप अ थम्स अप, ओके ग्रेट, ऑलराइट। हाँ, सो डेटा लॉस प्रिवेंशन का ये होता है कि अगर आपने कोई डेटा स्टोर किया है गूगल क्लाउड पे, ठीक है, क्लाउड पे, सो इसमें कुछ ऐसी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होती है, जैसे कि होते हैं कि यूजर मैनेजमेंट एंड शेयरिंग, IAM सर्विसेज। इसमें क्या होता है, तो पर्टिकुलर यूजर्स के पास आपका डेटा एक्सेस होगा, लाइक फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड या फिर यू कैन कीप इट प्राइवेट टू योरसेल्फ। मतलब इसमें ये है कि आपका जो डेटा होगा इट वोंट इजिली लूज, यू वोंट इजिली लूज योर डेटा एज कम्पेयर टू द फिजिकल डिवाइस। अगर आपकी फिजिकल डिवाइस, सपोज आई एम यूजिंग द लैपटॉप राइट नाउ, अगर इसमें पानी पड़ जाए, कुछ भी हो जाए और ये खराब हो जाए, तो व्हाट विल हैपन, माय डेटा विल डिसअपियर, ऑब्वियसली इट विल बी माय लॉस। Okay, but if I store it on Google Cloud, it doesn't have a physical structure. It is hosted over the cloud. It is hosted over the internet, and that too in a secured place. तो क्या होगा? It is easily accessible to me because I have the credentials for it. Also, उसमें data loss के chances काफी कम हो जाते हैं। We will come to this. You will know कि कैसे data loss कम होता है, because देखो होता क्या है ना, जैसे कि suppose हम लेते हैं US का example लेते हैं। US में there are 3 zones basically. I will just tell you, ये क्लाउड की टर्मिनोलॉजीज है। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि चलो इंडिया का लेते हैं। संस्कार, आई होप यू आर देयर। सो कमिंग टू इंडिया, सपोज वी हैव 4 data centers primary,
one in Bombay, one in Calcutta, one in Delhi, and one in, suppose, Gujarat. Let's take it. My data has been stored over cloud. In case दिल्ली का या फिर कैलकाटा का अगर डेटा सेंटर बंद होगा, ठीक है, अगर वहां का डेटा सेंटर पे कोई फॉल्ट आता है, तो यू माइट बी थिंकिंग कि मेरा डेटा तो क्लाउड पे होस्टेड है, उसका डेटा सेंटर तो कोलकाता में भी था, तो कैसे काम होगा इस पे? बट द थिंग इज कि आपका जो डेटा है ना, इट इज नॉट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर डेटा सेंटर. अगर आपका डेटा अगर एक सर्वर काम करना बंद कर देता है, एक डेटा सेंटर, बट देयर इज अनदर डेटा सेंटर टू जस्ट टैकल द प्रॉब्लम, ठीक है, योर डेटा विल बी सेफ ओवर द इंटरनेट, ओवर द क्लाउड, and it will be accessible to you most of the times, like probability 99%. I hope it's clear. Now, coming to cloud service provider. Basically, cloud service provider or CSP, क्या होता है? You can see over the screen. It is a company that provides multiple cloud services. And cloud services क्या क्या हो सकती है? It could be a compute engine. It could be storage. It could be security. It could be networks, and so on. Is everyone able to see the screen? The image, we have a VPC, we have a compute engine, cloud storage, cloud SQL. Are you able to understand anything from it? Okay, if anyone is not able to understand, I will give you a short summary of what this image actually says. Okay guys, I hope it's not boring. In case it gets a little bit boring या फिर एक ही चीज दोबारा repeat हो रही है, so just type in the chat, ठीक है? Let me know about the same, because this session is for you, not for me. Okay, I'll give a short summary. Let me try to find. Uh, there must be a pencil or something like that. All right. So, are you able to see the cursor? Because मुझे भी highlighter नहीं मिल रहा है, and I'm going to not waste my time over finding the highlighter. Able to see the cursor, this mouse pointer? ठीक है. तो देखो ना, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का एक एग्जांपल है. ठीक है, आप क्लाउड पे क्या होस्ट कर सकते हो? चलो एक वेब ऐप लेके चलते हैं. वेब एप्लीकेशंस. सबने विकिपीडिया यूज किया है? एक मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, सपोज विकिपीडिया या ऐसा कुछ, ठीक है, और यू कैन से फेसबुक और इंस्टाग्राम, लाइक एनी ऑफ योर फेवरेट सर्विस. यू हैव टू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वेब ऐप. ठीक है, ये उसका मॉडल है कि अगर वो होस्ट कर रहे हो तो कैसे करोगे आप गूगल क्लाउड के थ्रू. ठीक है, सो देखो होता क्या है, आपको क्लाउड दिख रहा है, इट इज जस्ट डिपिक्टिंग दैट इट इज अ क्लाउड. बेसिकली क्या होगा, एक जो क्लाउड स्ट्रक्चर आता है ना, ठीक है, सपोज आई एम हैविंग माय वेब एप्लीकेशन. व्हाट आई एम हैविंग अ वेब एप्लीकेशन. मुझे करनी है किस पे होस्ट? क्लाउड पे होस्ट करनी है, ताकि वो मैं हर जगह से एक्सेस कर सकूं. ठीक है, व्हाट विल हैपन, कंप्यूट इंजन पे मैं उसके सब कोड वगैरह डालूंगी. यस और नो, कि मैंने एक कंप्यूट इंजन चूज किया, इट आई विल क्रिएट अ वर्चुअल मशीन और समथिंग लाइक दैट टू होस्ट दैट वेब एप्लीकेशन ओवर देयर, ताकि मैं उसका टेस्टिंग कर सकूं कि ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही है. ओके, नाउ माय वेब ऐप इज गोइंग टू हैव सम डेटा. इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस, ऑडियो, समथिंग लाइक दैट. तो फॉर दैट वी हैव दिस क्लाउड स्टोरेज. ठीक है, क्लाउड स्टोरेज क्या करता है? इट इज बेसिकली अ डायरेक्टरी और अ स्टोरेज प्लेस जहाँ पे आपके किसी भी तरह का रॉ मीडिया, किसी भी तरह का मीडिया आप स्टोर कर सकते हो ओवर क्लाउड इन द फॉर्म ऑफ बकेट्स. आपकी विंडोज में आपके पास फोल्डर्स होते हैं ना, यहाँ पे बनती हैं बकेट्स इन क्लाउड स्टोरेज. ठीक है, अब देखो कुछ एप्स ऐसे होते हैं ना जो यूजर का डेटा ट्रैक करते हैं. जैसे कि आपने कोई कहीं पे लॉगिन किया, इंस्टाग्राम पे तो मिलियन यूजर्स लॉगिन कर रहे हैं, सबका ईमेल आईडी है, सबका पासवर्ड है. यस और नो, तो उसका जो डेटा होता है वो कहीं डेटाबेस में स्टोर करना पड़ता है. तो फॉर दैट डेटाबेस प्रॉपर्टी वी हैव दिस क्लाउड एसक्यूएल. इसमें जितना भी हमारे पास डेटाबेस का स्टोरेज वर्क होगा वो होता है क्लाउड एसक्यूएल के अंदर. एंड क्लाउड एसक्यूएल इज फॉर योर रिलेशनल डेटा. मतलब जितना भी टैबुलर फॉर्म का डेटा जाएगा दैट विल गो इन द क्लाउड एसक्यूएल. ठीक है, दिस इज फॉर माय ऐप. अब देखो, अब मुझे करना है डिप्लॉय. ऐप का स्टोरेज डन हो गया, डेटाबेस डन हो गया. ठीक है, तो अब उसको करना है डिप्लॉय. डिप्लॉय मींस होस्ट करना है कहीं पे उसको. डिप्लॉय का मतलब समझ में आता है ना सबको? ठीक है, सो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मैनेजर क्या करता है, ये ध्यान देता है कि आपका जो ऐप है
वो प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय हो जाए, फिर लोड हो जाए, ठीक है। एंड देन यू हैव डायलॉग फ्लो। फॉर एग्जाम्पल, सबने चैट सपोर्ट से बात की कभी, पेटीएम के या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट के? ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी यू हैव द ऑटोमेटेड चैट, जैसे कहते हैं कि हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, आपने बता दिया, देन वो कहता है कि गिव मी योर यूपीआई आईडी फ्रॉम विच ट्रांजैक्शन वाज मेड, या फिर दिस वाज योर लास्ट ट्रांजैक्शन। जब तक बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं होता तब तक वो कस्टमर एक रियल लाइफ पर्सन से कनेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो जो भी आपके पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चैटबॉट्स होते हैं, चैटबॉट्स वो किससे आते हैं, डायलॉग फ्लो के थ्रू आते हैं। और हाँ, आप डायलॉग फ्लो को यूज करके एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो ओवर गूगल क्लाउड, बिकॉज आई हैड मेड इट लाइक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस एंड इट वाज फन। ठीक है, तो डायलॉग फ्लो इज यूज टू मेक अ कॉन्वर्जेशनल एआई, अ काइंड ऑफ चैटबॉट। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, हाउ अ वेब एप्लीकेशन इज होस्टेड एंड स्टोर्ड ओवर योर क्लाउड। अब वीपीसी होता है कि वर्चुअल प्राइवेट कनेक्शन, इसको हम बाद में बात करेंगे। इट इज बेसिकली नेटवर्क, जैसे मैंने कहा था ना, यहाँ पे सिक्योरिटी की बात होती है क्लाउड की। तो ये लेके चलो कि वीपीसी के अंडर ये सारी चीजें स्टोर्ड है, एंड ये आपके डेटा, मतलब एक पर्टिकुलर आपके पास ही इसका एक्सेस है, कहीं और नहीं जाएगा। ठीक है, क्लाउड सीडीएन यू कैन से कि इट इज अ काइंड ऑफ डिवाइस, और यू कैन से प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स यू कनेक्ट ओवर द इंटरनेट एंड गिव्स यू द एक्सेस टू योर ऐप। जैसे आपका ऐप होस्ट हो जाए, तो अगर आप इसे कहीं से एक्सेस करते हो तो यू कैन काउंट इट एज अ क्लाउड सीडीएन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, इट इज कंप्यूट इंजन, क्लाउड स्टोरेज एंड क्लाउड एसक्यूएल फॉर दिस वीक। ठीक है, फॉर दिस वीक इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू नो कंप्यूट इंजन, क्लाउड स्टोरेज एंड क्लाउड एसक्यूएल। नाउ व्हाट इज गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म? गूगल की साइड से जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड होती है, इट इज प्रोवाइडेड ओवर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, प्रोबेबली कॉल्ड जीसीपी, एंड आप काम करोगे किस पे, जीसीपी पे करोगे। ठीक है, क्लाउड के पास एक या दो सर्विसेज नहीं है, दे हैव मेनी सर्विसेज, टू बी ऑनेस्ट, इतना कि आप खुद याद नहीं कर पाओगे, एंड दैट टू मेक्स इट ओवरवेलमिंग समटाइम्स। ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न majority of these services in this program, which is actually fascinating also, but थोड़ा बहुत overwhelming also. ठीक है, here's an example that first product offered by GCP was App Engine. App Engine क्या करता है? Does anyone know what is App Engine? Come to the chat, guys. Yes, no, कुछ भी डालो. What would be App Engine? गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ने पहला जो प्रोडक्ट ऑफर किया था, ना वो कंप्यूट इंजन था ना कोई स्टोरेज था, इट वाज द ऐप इंजन। व्हाट इज ऐप इंजन? जस्ट राइट, गिव मी द डेफिनेशन, क्या होता है ऐप इंजन इन टर्म्स ऑफ गूगल क्लाउड? सर्च इंजन नहीं है, ऐप इंजन है। ठीक है, ओके गाइस, बी क्विक, यस और नो, जस्ट बी क्विक। ओके, सो देखो, ऐप इंजन क्या होता है ना, जब आपको अपनी एप्लीकेशन, अपना ऐप होस्ट करना होता है, हाँ, इट हेल्प्स यू क्रिएट एन ऐप यूजिंग क्लाउड एंड ऑल्सो होस्ट एन ऐप यूजिंग क्लाउड। ठीक है, इट इज फॉर योर ऐप इंजन। आप ऐप इंजन पे भी वर्क करोगे अभी इसके आगे। All right, now coming to the common cloud services. देखो, cloud services बहुत सारी है, there are like hundreds of cloud services, but the services that you will focus on in your project building also, and in this uh, learning phase also, it is going to be compute. Compute क्या करता है? It helps you to create a virtual computer that can run application. अभी पहले example में हमने क्या run किया था? In the last example, guys, here what was the compute engine doing here? Come to the chat, be quick. In this example, what was the compute engine doing? किस चीज का एग्जाम्पल लिया था हमने? क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड एसक्यूएल। गाइस कम ऑन, अभी अभी पढ़ा है 2 मिनट पहले। द हिंट इज हियर, कंप्यूट क्या कर रहा था अभी तक? जस्ट रीड दिस लाइन अबाउट कंप्यूट, देन रिलेट की पहले हमने कौन सा एग्जाम्पल यूज किया, देन उसके रेफरेंस में क्या यूज कर रहा होगा वो। डेटा स्टोरेज, बेसिकली यू हैव क्लाउड स्टोरेज फॉर डेटा स्टोरेज, स्नेहा। व्हाट इज फॉर कंप्यूट? बेसिकली कंप्यूट क्यों यूज किया हमने लास्ट एग्जाम्पल में, एंड व्हाट वाज द एग्जाम्पल? वर्चुअल मशीन, एंड व्हाट एल्स? डिप्लॉय, यू हैव क्लाउड डिप्लॉयमेंट मैनेजर, दैट इज अनदर थिंग। देखो, बेसिकली कंप्यूट क्या करता है, कंप्यूट ये सर्विस है, इसके अंदर देखो यहाँ पे कुछ प्रोसेसर दिख रहा है आपको, प्रोसेसर या चिप जैसा कुछ दिख रहा होगा बेसिकली। आई कैन यू सी ऑन द स्क्रीन?
तो ये इट इज अ सिंबल फॉर कंप्यूट। देखो कंप्यूट क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स यू अ वर्चुअल मशीन, एंड उस वर्चुअल मशीन के अंदर एंड उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, प्रोग्राम्स लिख सकते हो एंड कोड्स डाल सकते हो। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, ऑल्दो आप क्लाउड पे काम कर रहे हो, आप क्लाउड पे काम कर रहे हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आपको फिजिकल कंप्यूटर दिया जाए तो यहाँ पे यू आर हैविंग अ मशीन नो, जिसमें ओएस है, जिसमें आपके अकाउंट्स हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जो आप इस मशीन के थ्रू यूज कर रहे हो। यस और नो गाइस? तो क्लाउड पे भी अगर आपको सर्विसेज यूज करनी है, डेटा मतलब लाइक डेटा तो नहीं बट लाइक अगर आपको प्रोग्राम स्टोर करने हैं या कुछ ऐसा कि आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो या रन हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको एक वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी उस पे भी। ठीक है? नाउ नेटवर्किंग, लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, आपके वर्चुअल नेटवर्क्स क्रिएट होते हैं। ठीक है? एंड नेटवर्किंग का आई डोंट नो कि वर्क है नहीं है, बट होगा, थोड़ा बहुत वर्क होगा आपके इसमें भी। तो क्लाउड आल्सो हेल्प्स यू टू क्रिएट सम वर्चुअल नेटवर्क्स, to define some internet connections and network isolations. Okay, storage, ऑब्वियसली स्टोरेज क्या करता है, आपकी चीजों को स्टोर करता है, एंड क्लाउड के पास स्टोरेज के नाम पे क्लाउड स्टोरेज के अलावा भी बहुत सारे स्टोरेज सर्विसेज होती हैं, लाइक देयर आर 3 or 4 सर्विसेज फॉर द सेम। Then you have databases, and देखो most of the organizations, if you must have been there in the last session, I had mentioned कि 90% of today's organization are using cloud। और पता है क्लाउड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जो ग्लोबली रन करती है, उनके पास जो यूजर डेटा है, इट इज नॉट सफिशिएंट टू बी स्टोर्ड इन अ फिजिकल मशीन। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो ग्लोबली एक्सेसिबल हो एंड जिसके अंदर कोई लिमिट ना हो, मतलब कि इट शुड हैव अ काइंड ऑफ लिमिटलेस स्टोरेज, एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर डेटाबेसेस। ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन कि आपकी क्लाउड सर्विसेज इतनी डिमांड क्यों बढ़ गई है in the past years. ठीक है? So GCP has over 60 plus cloud services. Cloud computing can be used to refer to all the categories even though it has compute in the name. I hope it's clear. Just write a cloud, drop a cloud emoji or say yes or any emoji in the chat section, guys. Come on, we only have 15 to 20 minutes left. So yeah, great. All right. It's great to know that each and every one of you is understanding these concepts because जब आप डॉक्यूमेंट्स रीड करते हो तो इट मे हैपन कि बोरिंग सा हो जाए। ठीक है? सो इन ऑर्डर टू अवॉइड इट, नाउ कमिंग टू द क्लाउड सर्विसेज, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर वाज अ पर्सन हु वाज ड्रॉपिंग SaaS इन द चैट्स। हु वाज दैट पर्सन? सो जो भी जिसने भी ड्रॉप किया था सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यू कैन कम ऑनलाइन एंड यू कैन सी दिस टॉपिक हैज कम। तो देखो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया क्या क्या होती है, स्टोरेज हो गया, नेटवर्क्स हो गए, कंप्यूट एक्सेट्रा। बट इनकी ना देखो 3 कैटेगरीज होती है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है? कमिंग टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सो इट जस्ट कवर्स अप ऑल द क्लाउड सर्विसेज, ठीक है, विच आर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर द कस्टमर्स। ठीक है? अब इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट दैट इज रन एंड मैनेज बाय द सर्विस प्रोवाइडर। और हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है अभी? व्हाट इज द सर्विस प्रोवाइडर दैट वी आर हैविंग राइट नाउ? वी हैव गूगल क्लाउड, या वी हैव गूगल क्लाउड एज अ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है? तो SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वो सारी सर्विसेज को या एप्लीकेशंस को कवर करेगा which are provided by Google for its customers. एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, आप ईमेल यूज करते हो, आप गूगल का सर्च इंजन यूज करते हो, यू ऑल्सो यूज वॉट, आई गेस देर आर गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल मैप्स। तो ये सब क्या है, आप कस्टमर हो एंड आप इनकी सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो व्हाट इज दैट, इट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। You are using the cloud service and it comes into the category of software as a service. All right, सब SaaS यूज करते हैं, SaaS, आई होप यस। इवन गूगल मीट अभी आप उनकी सर्विस यूज कर रहे हो, ग्रेट। नाउ कमिंग टू प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, अब देखो प्लेटफॉर्म इज मोर लाइक फॉर डेवलपर्स। ठीक है? जिन्हें गूगल की सर्विसेज यूज करनी है एज बीइंग अ डेवलपर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्या कोई है जिसको अपनी वेबसाइट होस्ट करनी हो या फिर ऐप बनाना हो, कुछ भी ऐसा करना हो, थोड़ा टेक्निकल कीड़ा काइंड ऑफ पर्सन? इज देयर एनीवन? जस्ट रेज योर हैंड्स, से यस और लाइक से एनीथिंग। Anyone who wants to host their website? Okay, we have Ananya, Dev, Sanskar. Great, guys. तो देखो
TaaS, this is very much helpful for you because अगर आप कभी अपनी ऐप को होस्ट करोगे या फिर वेबसाइट को होस्ट करोगे तो क्लाउड ऑल्सो हैज फ्यू सर्विसेज फॉर यू इन दिस केस. ठीक है, सो हियर you are provided various you can say platform basically जहाँ पे आप अपने deployment and management कर सकते हो for your apps. App doesn't only cover up mobile वाला app, it also covers your web apps, that is your websites. ठीक है, here you have Heroku for the same. ठीक है, तो you can just remember the name of Heroku and rest you can search out what are these emojis, sorry, images. Now coming to infrastructure as a service. Infrastructure as a service and it is for admins. For example, I have an organization, एक हेल्थ केयर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, सो क्या होगा, मैंने एक हेल्थ केयर ऐप होस्ट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन की साइड से, बट वी ऑल्सो ऑफर जो होता नहीं है एंड टू एंड सर्विसेज टू द यूजर. और हमारा डेटा किस पे होस्टेड है, इंटरनेट पे होस्टेड है, क्लाउड पे होस्टेड है. तो व्हाट वी विल नीड, वी नीड टू क्रिएट like completely virtual machines for the same. हमें डेटाबेस का एक्सेस चाहिए for the same, yes or no. क्लाउड स्टोरेज चाहिए ताकि हम यूजर का जो मेट्रिक्स है, जो भी डेटा है किसी भी तरह का, हम उसे स्टोर कर सकें. Also we are also using an app from an organization, तो we need the deployment for the same. ठीक है, तो इसके लिए जो यूज आता है, इट इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. ठीक है, यू कैन से कि the data centers, sorry, not like that. Yeah, so it gives you the access to networking features, computers and data storage. अब देखो example क्या है, infrastructure as service में you have Microsoft Azure which is offered by Microsoft, AWS that is offered by Amazon, and you have GCP that is Google Cloud Platform. तो अब मुझे ये बताओ कि in this 1 month of learning आपको कौन सी सर्विस मिल रही है? Come on everyone, this question is for everyone. In this 1 month of learning, which cloud service will be provided to you? Come on. Okay, Sumed has answered GCP. Great. Okay, so you are given the infrastructure as a service or the Google Cloud Platform. Great, everyone. So, yeah, I hope this is clear. देखो, जो भी इंफ्रा सॉफ्टवेयर एंड प्लेटफॉर्म, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो इसे आई गेस अभी आप समझ चुके होंगे. Now, coming to cloud computing deployment models. Now, this is a little bit important for you because कई beginners जो होते हैं, not targeting any one of you because मैं नहीं जानती किसको कितना आता है, but like there are many beginners who like when they start to study about Google Cloud, ठीक है, so वो सोचते हैं कि cloud का एक offline server होगा and क्या क्या होगा. Like it depends. Everything has a functionality. So let's come to these terminologies. Public cloud. ठीक है, public cloud, everything that is built on the cloud provider. ठीक है, also known as cloud native. For example, देखो यहाँ पे ना AWS का एग्जाम्पल दे रखा है, सो डोंट रेफर टू इट. देखो GCP का भी ऐसा ही होता है स्ट्रक्चर, एक तरह से सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का सेम स्ट्रक्चर होता है, जस्ट टू कीप इट अ लिटिल बिट इजियर फॉर द यूजर बिकॉज देयर आर मेनी यूजर्स हु स्विच फ्रॉम वन क्लाउड प्लेटफॉर्म टू द अनदर. अभी आपने GCP किया है, बाद में हो सकता है प्राइसिंग के चक्कर में आप AWS पे स्विच अप कर जाओ, सो दैट इज अ थिंग. Okay, so public cloud, everything is built on the cloud provider. That is, आप अभी public cloud पे काम करोगे, ठीक है. It is a public cloud, like everything is there on the internet. आपको सारी services मिलेंगी as per your user. आपकी billing and services जो कुछ भी होगा वो as it is रहेगा, सबके लिए same रहता है. But if someone talks about private cloud, ठीक है, अगर किसी ने कभी आपसे कहा कि आई हैव अ प्राइवेट क्लाउड फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, ये समझ जाना कि वो ऑन प्रीमाइस डेटा सेंटर की बात कर रहा है, मतलब कि उसका कोई गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या एज़्योर या AWS पे होस्टेड नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का डेटा. ठीक है, वो क्या है, जैसे कि आई हैव अ लैपटॉप, ठीक है, मैंने कुछ सर्वर्स क्रिएट कर दिए इन माई ऑफिस एंड दैट इज माई प्राइवेट क्लाउड. प्राइवेट क्लाउड मीन्स ऑन प्रीमाइस सेटअप, मतलब जितना भी डेटा होगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो उस कंपनी का होगा, जो डेटा स्टोर होगा उनके फिजिकल डिवाइसेस, फिजिकल हार्डवेयर स्ट्रक्चर पे स्टोर होगा. ठीक है, इट इज नॉट होस्टेड ओवर इंटरनेट और क्लाउड, एंड दिस इज द प्राइवेट क्लाउड. अब आता है हाइब्रिड. हाइब्रिड ऐसा रहता है कि कुछ कुछ डेटा यूजर का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहता है. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस ऑफलाइन उनके पास रहता है, एंड थोड़ा बहुत रहता है किसके पास, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास. ठीक है, so these kind of models are literally used everywhere. If you're on a great scale, you have to switch to the public cloud, and like if you are on a small scale या फिर it's about your wish कि अगर आपको expenditure नहीं बढ़ाना है, कुछ भी है, तो you can switch to the private cloud as per your requirement. ठीक है, बट प्राइवेट क्लाउड इज नथिंग, इसमें कोई सर्विस यूज नहीं होती. इट जस्ट कि आपके पास एक फिजिकल, आपने सर्वर उठा लिया, आप उसके हार्डवेयर का खर्चा कर रहे हो, मॉडिफिकेशंस आप कर रहे हो,
एंड आपका ऑफलाइन डेटा उसी पे स्टोर रहेगा एज लॉन्ग एज दैट डिवाइस इज सेफ. उस डिवाइस को कुछ हो गया तो आपका डेटा टाटा बाय बाय. नाउ hybrid is, I guess it's understood. Now these are the models. It is just about the example. ठीक है, कि ताकि आप समझ सको कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कैसे वर्क करते हैं ऑन द क्लाउड. लाइक यू आर गोइंग टू यूटिलाइज द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑल. यू हैव द ड्रॉप बॉक्स एंड यू हैव वेरियस सर्विसेज. इट इज यूज्ड बाय द स्टार्टअप्स, SaaS offerings and new project and companies. ठीक है. हाइब्रिड कहाँ पे होता है? यू आर यूजिंग द क्लाउड ऑल्सो एंड यू आर यूजिंग द प्रमाइस ऑल्सो. यू हैव CPP, यू हैव Deloitte एंड ये सब कुछ. तो यू हैव बैंक्स, यू हैव इन्वेस्ट मैनेजमेंट एंड लेगेसी एंड लार्ज प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स. तो ये ऑर्गेनाइजेशंस आपके हाइब्रिड यूज करते हैं. दैट इज दे टेक अ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑल्सो, फिजिकल सिस्टम, एंड दे होस्ट द डेटा ओवर द क्लाउड ऑल्सो. एंड ऑन प्रमाइस जो कंप्लीटली ऑफलाइन होता है. इट इज ऑल्सो रेफर टू एज प्राइवेट क्लाउड. एंड इसके देखो पब्लिक सेक्टर, दैट इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते हैं बड़े बड़े, फाइल्स उड़ रही होती हैं, अगर किसी ने मूवीज में देखा होगा तो वो सब क्या है? दे हैव देयर डेटा ऑन द प्रेमाइस इटसेल्फ. जो उनका सर्वर्स होंगे, जो भी डेटा सेंटर होगा, इट इज नॉट रिलेटेड टू क्लाउड. वो बस उनकी ऑर्गेनाइजेशन के ही हिसाब से है. ठीक है. सुपर सेंसिटिव डेटा, दैट इज हॉस्पिटल्स. या हॉस्पिटल्स कैन ऑल्सो स्विच टू हाइब्रिड, बट इट इज, मतलब ये हॉस्पिटल की मर्जी है. ठीक है. कुछ होती है जो ग्लोबल चेन्स होती है हॉस्पिटल्स की, दे हैव टू स्टोर द डेटा ऑन द क्लाउड ऑल्सो, तो हाइब्रिड यूज करती है. बट होता है ना कुछ लोकल हॉस्पिटल हो गए छोटे मोटे, सो क्लाउड क्यों यूज करेंगे वो ऑब्वियसली. सो दे आर ऑन द ऑन प्रेमाइसेस. देन वी हैव द लार्ज एंटरप्राइज विद हेवी रेगुलेशन, दैट इज इंश्योरेंस कंपनीज. ओके. नाउ यहाँ तक सबको क्लियर है एवरीवन? एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? I'll just take 10 or 15 more minutes just to wrap up and give you a guide ki how you have to get started with the labs from tomorrow. Just drop an acknowledgement message, yes or no, if this is clear. Great. And देखो समझ नहीं भी आता है, PPT will be shared to you every week. It will be, this sessions will be organized, so don't worry. आराम से सुनो, समझो, and yeah, keep revising. Okay. Now coming to Cloud Console. Let me just come to this pathway. या सो एक ही आपकी क्वेस्ट है जो मैंने आपको कोर्स आज होमवर्क दिया है, आपको ये करना है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स लाइक क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन. डज एवरीवन रिमेंबर व्हाट इज अ वर्चुअल मशीन? गाइस, वर्चुअल मशीन कौन सी सर्विस के अंदर आता है? कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्क और कंटेनर्स, लाइक विद सर्विस. यस एवरीवन, व्हाट इज अ वर्चुअल मशीन? कंप्यूट इंजन. ठीक है. वर्चुअल मशीन क्या करती है? कोई शॉर्ट सा एक दो वर्ड में समझा दो. वर्चुअल मशीन क्या करती है? Yes, guys, what does a virtual machine do? ओके, वर्चुअल कंप्यूटर एक इजी सा समझने के लिए. ठीक है. राइट अ प्रोग्राम. जिसको और डीप से जानना है, सामने देखो ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे आपको सब दे रखा है. एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स इटसेल्फ. ठीक है. तो आज आप क्या करोगे, जो आपको लाइक वर्क दे रखा है, व्हेन यू रीडिंग द कोड टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, यू हैव टू जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट. एंड देखो करना कैसे है. लेट मी जस्ट शो यू द स्टेप. सो yeah, so this is my pathway. Everyone just look carefully because I won't be able to repeat it again. Yeah, coming to engineer learning pathway. So yeah, this is your first homework. It is showing green because I have completed it, but in your case it's going to be completely blank. Go to continue or begin. ठीक है. Start with the first one. यहाँ से शुरू करना. Then come to virtual machine. ठीक है. And how you're going to do is you're going to click on the start lab. ठीक है. अब देखो आपके स्क्रीन पे ये ऑप्शन नहीं आएगा बिकॉज मेरे पास कोई भी क्रेडिट नहीं बचा है. मुझे अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा टू यूज दिस, बट यू विल बी गेटिंग फ्री क्रेडिट्स टुमारो. ठीक है. यू हैव टू लॉन्च ऑन स्टार्ट लैब एंड बाकी सब कुछ देखो सेटअप वगैरह में आपको दे रखा है कैसे करना है. क्लिक ऑन द स्टार्ट लैब बटन एंड आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा. देखो लैब में सारे इंस्ट्रक्शंस गिवन है. यू जस्ट हैव टू रीड देम प्रॉपर्ली. 2-3 बार रीड करके कर लो, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली करने लगोगे. ठीक है. अब देखो क्या शो कर रहा है. Once you get into this, once you follow this, तो आपके पास आ जाएगा एक क्लाउड कंसोल.
आप जानते हैं कि देखो हमने बात कर ली कि ऐप इंजन कैसे बनता है, कहाँ होस्ट होता है, कैसे डिप्लॉय होता है, कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस कहाँ जाते हैं। अब बात ये करते हैं कि आप ये काम करोगे किस पे, बिकॉज आपने प्रैक्टिकली वर्क करना है, राइट? सो आपको जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जो सी ऑन द स्क्रीन, इसे होस्ट करने के लिए यू हैव द क्लाउड कंसोल। ठीक है, कंसोल मीनो दैट इज कि आपकी कलरफुल सी विंडो होगी, यू आर गोइंग टू हैव वेरियस नेविगेशन बटन्स। देखो यहाँ पे मार्केट प्लेस, बिलिंग, एपीआई सर्विसेज, सिक्योरिटी, एंथॉस, आईएम, ये सब कुछ दे रखा है। तो दिस इज योर क्लाउड प्लेटफॉर्म का क्लाउड कंसोल मीनू। ठीक है, क्लाउड कंसोल का विंडो ये है, एंड आप यहाँ पे अपना वर्क करोगे। ऑलराइट, सो लाइक सपोज, चलो इसमें अभी कंप्यूट का नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट थिंग इज गूगल शेल। देखो, जब आप डेवलपमेंट करते हो ना गूगल पे, इस बार तो आपको प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, तो देयर आर टू थिंग्स। अगर आपको, देखो मैं एग्जांपल एक छोटा सा लेके बताती हूँ। अगर आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, वर्चुअल मशीन क्या होती है? एक सिंपल सी आप एक कंप्यूटर बना रहे हो इंटरनेट पे, जिसका एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। लेट्स से कि मुझे बनाना है, समवन सजेस्ट मी एन ऑपरेटिंग सिस्टम अपार्ट फ्रॉम विंडोज, या समवन, any operating system apart from Windows? Linux, great. So I have to create a virtual machine on Linux. मेरे पास Linux नहीं है, I am using Windows. ठीक है, तो what I will do, I will go to यहाँ पे compute engine का option आएगा, compute का, I will click on it, then वो कहता है कि create a new VM instance। ठीक है, वर्चुअल मशीन क्रिएट करो, देन उसमें आप नाम डालते हो, उसका जोन स्पेसिफाई करते हो, देन आप उसका ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफाई करते हो कि मैंने डाल दिया Linux, आई हैव क्रिएटेड इट। ठीक है, ये आपने किया क्लाउड कंसोल से, बट आप इसे कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हो। ऑलराइट, सो अगर आपको कोडिंग के थ्रू एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, सो यू हैव दिस क्लाउड शेल वाला ऑप्शन। ठीक है, एंड लाइक व्हेनेवर यू विल फॉलो द लैब्स, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या और कैसे करना है, बट आई एम टेलिंग यू कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑलराइट, नाउ क्लाउड एसडीके, फॉर एग्जांपल अभी हमने बात क्या की थी, हमने एक ऐप बनाया था और ऐप को डिप्लॉय करा था एग्जांपल के तौर पे। तो ऐप के लिए व्हाट आर द लैंग्वेजेस यूज्ड? यू कैन यूज जावा, यू कैन यूज फ्लटर, यू कैन यूज कॉटलिन एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्लाउड एसडीके में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने प्रोजेक्ट में एक एप्लीकेशन ही बना दी जो क्लाउड पे होस्ट है। ओके, सो आपके पास क्लाउड एसडीके दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक किट मिलता है, जिसके अंदर आप अ, अपने हिसाब से लैंग्वेज को यूज करके डायरेक्टली कोड कर सकते हो। ठीक है, देयर इज एग्जांपल ऑफ रूबी, एंड आई डोंट नो व्हाट इज रूबी, तो ये कोड गलत भी हो सकता है, बट यू हैव वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन गूगल क्लाउड। ठीक है, तो आपको डेवलपमेंट करना है, एंड इफ यू वांट टू डेवलप इन योर लैंग्वेज, योर फेवरेट लैंग्वेज, so you have this cloud SDK का ऑप्शन ऑल्सो। ऑलराइट, ऑल्सो कमिंग टू प्रोजेक्ट्स, कभी भी आप क्लाउड विंडो पे जाओगे तो यू विल गेट दीज काइंड ऑफ बटन्स। ठीक है, दिस इज स्पेसिफाइड इन ईच एंड एवरी लैब। सो देखो, प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है? इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ रिसोर्सेज। एवरी टाइम यू विल लॉग इन टू द लैब यूजिंग द क्रेडेंशियल्स दैट आर गिवन टू यू, आपके प्रोजेक्ट का नेम काफी अलग होगा, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी रैंडम, लाइक ABZO 123 डैश सो एंड सो। ठीक है, तो कुछ भी हो जाएगा, आप इसमें अपनी नेमिंग भी कर सकते हो, इट्स जस्ट फॉर अ रेफरेंस। ओके, नाउ नाउ हेयर्स अ क्विक चेक, आई जस्ट वांट टू आस्क कि सबको अभी तक सब कुछ समझ में आया है? Though we should end it right now, here were the services basically, but I will just tell you to go through it yourself। ठीक है, यहाँ पे देखो जो कंप्यूट की सर्विसेज थी, कंप्यूट के अंदर क्या क्या आता है? वी हैव कंप्यूट इंजन जो वर्चुअल मशीन्स बनाता है, ऐप इंजन, Kubernetes, GPU, etc. I'm not going to explain each and everything because like time is about to end it, and it will take a long time to like clearly understand each and everything. Just go through it, just see the screen I'm showing you। You have services of containers। तो containers basically क्या होते हैं ना, अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, तो उसके कुछ फंक्शंस होते हैं दैट यू वांट टू लाइक स्टोर सेपरेटली, लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ पैकेजेस। काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यू हैव फ्यू पैकेजेस जिन्हें आप इंपोर्ट करते हो, राइट? तो वो जो पैकेजेस है ना, उसको आप कंटेनर से रिलेट करते हो। कंटेनर क्या करता है? एक स्टोरेज डिवाइस है, एक स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइक पैकेजेस या कोड्स वगैरह रखते हो सेपरेट करके। ठीक है, सो कंटेनर्स यूज करने के लिए you have the following option, you have Kubernetes, which is very trending topic, आप इसके बारे में सर्च स्टडी करोगे आगे, क्लाउड बिल्ड। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है Kubernetes। ठीक है, बाकी सब भी है, बट Kubernetes is very important। Coming to databases, अब data doesn't come in one shape or one face, like it's like it could be raw data, it could be relational data, key value pairs के फॉर्म में भी डेटा होता है, राइट?
सो हर तरह के डेटा के लिए यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस. बिग क्वेरी आप इसमें इट इज नो एसक्यूएल डेटाबेस, मशीन लर्निंग के थ्रू होती है ये, ठीक है. क्लाउड एसक्यूएल इट इज यूजिंग माई एसक्यूएल and SQL Server. It is relational database that uses SQL, so and so, ठीक है. इसमें Firestore is very trending because देखो Firebase and Firestore आपने सुने होंगे नाम, ठीक है. तो Firestore it's something like you have to work on in this pathway. सर्वर्सलेस सर्विसेज. तो अब देखो अभी तक हम बात किस पे कर रहे थे, सर्वर्स की बात कर रहे थे, डाटा होस्टेड ओवर क्लाउड, ठीक है. मतलब सर्वर्स इटसेल्फ क्लाउड obviously, but what is serverless, so you're going to study, we will cover this in next session, ठीक है. so it will be better अगर आप थोड़ा बहुत स्टडी करो इसके बारे में. बट सर्वलेस इज समथिंग कि इसमें आपका आर्किटेक्चर ना डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है. आपका आर्किटेक्चर कन्फाइंड नहीं होगा. ऑल्दो कि इन क्लाउड यू डोंट हैव टू डिफाइन अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देयर. ऑब्वियसली यू हैव टू जस्ट लॉग इन इनटू क्लाउड प्लेटफॉर्म, वीएम बनाओगे, इंस्टेंसेस क्रिएट करोगे, सो एंड सो. बट वहां पे होता है आपको स्पेसिफिकेशंस देनी पड़ती हैं फॉर द डिवाइसेस. बट इन द केस ऑफ सर्वलेस ये सर्विसेज ऐसी होती हैं दैट डजंट इवन मैटर अबाउट कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्या स्टेटस है, फिर उसमें कितना रिक्वायरमेंट नीड है. दे आर सर्वलेस, मतलब ये एक्सपैंड हो सकती है, स्केल हो सकती है काफी ज्यादा. एंड स्केल का एंड फ्लेक्सिबिलिटी का आपको डेफिनेशन मैंने पहले बताया है. कमिंग टू स्टोरेज सर्विसेज, देखो ये सब है. क्लाउड स्टोरेज फॉर फायरबेस. फायरबेस वाज व्हाट, इट वाज अ डेटाबेस, ठीक है. तो अगर आपको फायरबेस का डेटा स्टोर करना है, सो the real life data which is captured from the applications, you have cloud storage for Firebase, you have cloud storage as object storage also, you have file store, you have persistent disk. Now अब देखो, अब बात आती है आपके so the session, the theoretical पढ़ाई वाला part has ended. Now coming to the guidelines of the program. See, in the group there were around 116 people, but we have registrations around 105 people. So in case someone from जिसने रजिस्टर नहीं किया, इट्स फॉर दैट कि कल आपको एक एक्सेस कोड आएगा. अगर एक्सेस कोड नहीं मिलता है तो पहली बात तो हो सकती है कि आपकी एंट्री रिजेक्ट हो चुकी है. जो नहीं हुई होगी, फॉर द कंफर्मेशन कि आपकी एंट्री रिजेक्ट हुई है नहीं हुई है, जस्ट चेक द शीट्स व्हिच हैव बीन गिवन इन द ग्रुप डिस्क्रिप्शन, ठीक है. वो अपडेट हो जाएगी रात के 10 बजे तक, तो चेक कर लेना कल उसे. chances are कि your email went to the spam folder, so please don't clear your spam folder because आपका access code आपके लिए ही होगा. अगर वो गायब होता है तो I won't be able to help you out because the access code is unique for each and every account, ठीक है. keep checking your spam folders and or your promotions folder basically, ठीक है, for the access code. Now important thing, tomorrow or day after tomorrow whenever you will be starting to use the labs, ठीक है, कभी भी आप क्लाउड स्किल बूस्ट का प्लेटफॉर्म यूज करोगे और कभी आपको कोई एरर ऐसी आती है कि लाइक आपका आप लैब पे काम कर रहे थे, लैब स्टॉप हो गई या आपको एंट्री नहीं मिल रही है, ठीक है, इवन आफ्टर गेटिंग द एक्सेस कोड प्रॉपर्ली, सो आप क्या करोगे, चैट सपोर्ट पे क्लिक करोगे हमेशा. डो नॉट गो टू ईमेल सपोर्ट, सबसे पहले हेल्प सेंटर नहीं, चैट सपोर्ट पे जाना, ठीक है. वो आपकी सारी हेल्प कर देते हैं. इवन इफ यू आर स्ट्रक इन अ लैब वो भी हेल्प कर देते हैं. ऑल्सो आई विल बी हेल्पिंग बट it's all up to you, ठीक है. सो इन द स्किल बूस्ट प्लेटफॉर्म यू हैव दिस चैट सपोर्ट एंड दे आर लाइक सुपर हेल्पफुल. कभी कभी मेंटेनेंस वर्क होता है इसलिए टाइम लग जाता है, बट ठीक है, बट चैट सपोर्ट इज ऑलवेज देयर टू हेल्प. ऑल्सो if you don't get the cloud skill boost code tomorrow, I have told you कि just check if you have been registered because we got the extra entries and limited seats हैं इस program में. So yeah, now how like GDSCS RCSW, like how it will help you. So first thing is like it is an opportunity, a peer-to-peer learning opportunity. You can have discussions over the group, like what to study, how to study, like to have like practical. And देखो project building होगी इसके बाद. After we complete the project, we will make a separate group for the projects also, and वहाँ पे आप discussions कर सकते हो regarding the same. All right, we are going to have weekly online training sessions, guys. Whether you like it or not, I'm going to take the sessions and I'm going to teach. Whether you find it boring, whether you find it interesting, it's all up to you. Okay? And your progress report, like how many courses have you completed or how many labs you have completed. I will be updating this to you like once or twice in a week. Okay? And we're going to create a leaderboard. कि जितने भी registrations हुए हैं, who is leading it. And trust me guys, things are not being revealed at a point, but if you are just doing each and everything on time or before time, chances are that you may receive something unexpected. Take it? Something good and unexpected. So these are the timelines for you.
You will be getting the access code on 14th November to 14th December. You have to complete the course, you have to attend the sessions, because हर session में आपको एक update मिलेगी. ठीक है. Last date to complete the course is 14 December, and I know this is the time that many campuses have their exams. So जितना जल्दी करोगे उतना आपको फायदा होगा. ठीक है. If someone is not selected, can they still take the weekly session? Yeah, you can take. Yeah, you can take. I hope that you really get selected for the same, but yeah, you can take the sessions, because हाँ जितने concepts से कहीं ना कहीं आप use करोगे, networks पढ़ोगे या फिर cloud computing पढ़ोगे. So yeah, but the thing is कि आपको labs नहीं मिल पाएंगी. मेरे पास extra credits होते तो मैं दे देती, to be honest, but मेरे पास एक भी credit नहीं बचा है अभी. Okay. Next, December 12th to 28th. Do not trust this one, but you have to create a project in final submission. This is not confirmed yet, because many of you will be having your exams. I'm sure about it. ठीक है, तो जल्दी से प्रोजेक्ट को पूरा करो. लैब्स में ज़्यादा टाइम मत लगाना. इट इज़ लाइक कि काफ़ी जल्दी हो जाती हैं चीज़ें. ठीक है. नाउ ओके, सो if you face any difficulty with the skill boost platform, because काफी सब beginner हो, first time में काफी रहता है, network issue की वजह से lab disconnect हो जाती है, कभी कुछ समझ नहीं आता. It's like कि अरे 1 घंटा हो गया, अब क्या करेंगे. It is time taking but it is worth it. ठीक है. स्किल्स सीखने में टाइम लगाओ, बट देखो आपको याद रहेंगी वो स्किल्स. एंड क्लाउड कंप्यूटिंग समथिंग लाइक कि आपको पता होना चाहिए. ठीक है. See, freshers won't be having exams, but we have third years, even the fourth or second years in the this meeting also, Shreya. So freshers के एग्जाम नहीं होते दिसंबर में, बाद में होंगे. ठीक है. तो these are things you can do. FAQ document was shared in the first PPT. ठीक है. I will write in this also. You can write to the support alias, that is you can contact the chat support. आप ग्रुप में भी डाल सकते हो आपकी queries. ठीक है. And yeah, do not stop learning. So that's all for today's session. I hope you really enjoyed it. Now the forum is open up for queries. Feel free to drop your queries. Yeah, so anyone has any queries about GCP or anything, कोई भी concept जो पढ़ाया हो या कुछ भी, अगर किसी ने कोर्स देखा हो तो उससे रिलेटेड कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है. एंड हाँ गाइस, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, इस हिसाब से पढ़ना ताकि आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग आराम से कर सको. देखो थ्योरेटिकली आपको वर्ड बाय वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज कंप्यूट, व्हाट आर द यूजेस, व्हाट आर द टाइप्स. ठीक है. मेजरली फंक्शंस याद रखो, कैसे करना है, क्या करना है, बिकॉज काफी प्रैक्टिकल चीज है और प्रोजेक्ट आपका प्रैक्टिकल बेसिस पे ही बनेगा. ठीक है. सो एनीवन हैज एनी डाउट, वी विल रैप अप इन 5 minutes, अदरवाइज एंड या वन मोर थिंग, लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि आपके जो क्लाउड स्किल प्रोफाइल है, आपके उसमें 0 लैब्स हैं. ठीक है. जब भी आप कोई भी पूरा करोगे, लाइक मैंने यहाँ पे 2 क्वेस्ट पूरी की हैं, तो आपकी जो प्रोफाइल पे पब्लिक प्रोफाइल में जाओगे, सो यू विल फाइंड दोस बैजेस हियर. ठीक है. लाइक आई हैव डन दीज इन द GCRF प्रोग्राम दिस ईयर इटसेल्फ. ठीक है. तो ये सब होती हैं. तो आपकी जो पब्लिक प्रोफाइल URL है, आई गेस सबने क्रिएट किया ही था, तो आप इसे कहीं पे शेयर भी कर सकते हो, लाइक एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम कि या आई हैव कंप्लीटेड सो एंड सो. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू गेट योर बैजेस डन व्हेनेवर यू कंप्लीट एनी पाथवे. ठीक है. एंड चेक करते रहना कि आपने कोर्स पूरा कर लिया बट बैज नहीं मिला है, या फिर बैज आ गया है और कितना किया है. तो कीप चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग. नाउ डज एनीवन हैज एनी डाउट apart from this? Okay, great. So I hope that each and every one, yeah, you will start the lab once you receive the code tomorrow. And देखो कोड डालते टाइम ध्यान से डालना. एक्सेस कोड एक ही बार मिलता है. अगर मिसयूज हो गया या फिर कुछ भी हुआ तो we won't be able to help you out. All right. And yeah, whenever you receive the code, just start doing the lab. Do not wait for each and anyone else. कोई भी डाउट हो, drop in the group or you can text me personally also. ठीक है. Rest. See you in next week's session. In next week, we're going to cover up more advanced and practical based concepts. And all of you can leave the meeting now. Thank you so much, everyone.